ایسوسیشنز اس میں شامل ہیں. ماضی میں لکھا گیا ہے کہ آپ مختلف چیمبرز اور ایسوسیشن کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ایف پی سی سی آئی کو اس طرح سے نہیں دیا گیا جس جو اس کو دینا چاہیے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ فیڈریشن آف پاکستان جو کہ ایپیکس ادارہ ہے اس کو ہمیشہ آپ مشاورت میں اپنے ساتھ رکھیں. آج کے اس موقع پر میں بزنس کمیونٹی کی طرف سے ایس بی بی کی توجہ کچھ اہم نکات پر ڈالنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ملک میں اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے. مہنگائی بدترین سطح تک پہنچ گئی ہے. ایس بی بی کی پالیسیوں میں عدم تسلسل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور ایس بی بی کے درمیان تبادلہ خیالات کی قلت ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی جاری کر دی جاتی ہے جو بزنس کمیونٹی کے لیے دشواری کا باعث بنتی ہے، جس میں حالیہ سر فہرست ایل سیز کا مسئلہ ہے. اس گیپ کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایف پی سی آئی کو چاہیے کہ ہر مہینے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جائے تاکہ اسٹیٹ بینک کی تمام بزنس کمیونٹی کے مسائل، مارجن کے نفاذ کا جائزہ، کوٹا اور اوور آل بزنس انوائرمنٹ سے بھی بخوبی واقفیت ہو سکے. ایسے تشویشناک اور غیر یقینی کے حالات میں پالیسیوں میں عدم استحکام بزنس کمیونٹی کے بینکنگ سسٹم سے بھروسہ ختم ہونے کے مترادف ہے. ایس چیز کے فوری طور پر نہ کھولنے سے ملک میں کافی اشیاء کے بحران کا خدشہ ہے، خصوصی طور پر خام مال کے اسٹاک میں قلت انڈسٹریز کے لیے باعث پریشانی ہے. اگر ہم پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جانے والے قرضوں کی شرح کا موازنہ دیگر پڑوسی ممالک سے کریں تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جی ڈی پی ریجن میں سب سے کم یعنی کہ صرف 15% ہے. اسٹیٹ بینک مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے مسلسل شرح سود کا اضافہ کر رہا ہے جو کہ اصل میں مزید مہنگائی بڑھنے کا سبب بھی بن رہا ہے. دنیا میں اور بھی ٹولز ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے. مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں آئی ہے اور خاص طور پہ امریکہ دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، سب جگہ پر انہوں نے اپنے اس طرح سے پالیسی ریٹ کو اس طرح سے نہیں بڑھایا. تو اس کو جتنا ہی بڑھے گا اتنی ہی مہنگائی کا اضافہ بھی ہوتا جائے گا. ایف پی سی آئی کی اسٹیٹ بینک کو تجویز ہے کہ اس کاسٹ پش انفلیشن کے پریشر کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو مزید بڑھانے کی بجائے دیگر اقدامات کا استعمال کریں، جیسا کہ پوٹینشیل اقدامات. ہائی انٹرسٹ ریٹ سے بزنس کمیونٹی پہ خاصا دباؤ ہے. اس وقت پورے خطے میں پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے. اب آپ کمپیریزن کریں تو چائنا 2.8 پہ ہے، آپ کا انڈیا 6.3 پہ ہے، بنگلہ 5.8 پہ ہے اور ہم تو 16 پہ بھی ہیں. اور میں شروع سن رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سا اور اضافہ کیا جانے والا ہے. تو ہم ان کو کیسے کمپیٹ کر سکیں گے، ان کے ساتھ کیسے چل سکیں گے. اسی پلیٹ فارم پر ایف پی سی آئی اس پوائنٹ پہ بھی توجہ دلوانا چاہے گی کہ پالیسیوں کو متواتر، کنٹینیوٹی اور مؤثر بنانے کے لیے بزنس کمیونٹی کی نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان میں شرح جز سے متعلقہ فیصلے لینے والے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے 10 میں 7 ممبرز ایس بی بی کے خود نامزد کرتی ہے، اسٹیٹ بینک خود نامزد کرتا ہے. ایف پی سی آئی مانیٹری پالیسی کمیٹی ایم پی سی کے ممبران میں انڈسٹری کے نمائندہ کی شمولیت کی تجویز بھی کرتا ہے. این آر آئی نان ریپیٹریبل انویسٹمنٹ، کوئی بھی اوورسیز پاکستانی باہر سے اپنے ڈالر جمع کروا کے پاکستان میں اگر سامان بھیجنا چاہتا ہے تو بینک کو اس کے لیے سہولت مہیا کرے. ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ آپ کے بلکہ امپورٹ پالیسی میں آرڈر پیرا 11/2022 میں بھی ہے. آپ نے اعلان کیا تھا کہ 365 ڈیز کے ڈیفر پیمنٹ پر آپ سامان منگوا سکتے ہیں، لیکن بینک ان کی ایکسس کو کھولنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی. پاکستان کا ایجنڈا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اوپر کام کرنا چاہیے. انہوں نے کچھ سخت الفاظ یہاں پہ ساتھ نوٹ کر دیے تھے کہ یہ جو ڈیٹینشن اور ڈیمیجز کی مد میں جو ڈالرز شپنگ لائنس کو ہم دے رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کے کسی ایجنڈے میں بھی نہیں ہونا چاہیے.
अल्टीमेटली तो प्रेशर आपके ऊपर ही आएगा, आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर ही आता है। डोमिनो इफेक्ट की वजह से भी नुकसान हो रहा है। इन तमाम तर इक़दाम की वजह से मुल्क में जो बेरोज़गारी के तूफान आएगा, इसको भी तो हमने अभी तक इसकी बात नहीं की। आपके साबिक कायम मुकर्रर ने जो FPCCI और स्टेट बैंक की जो कमेटी बनाई थी, इसके बाद अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई, सिवाय इसके कि इस कमेटी ने सिर्फ TOR बनाने के लिए मीटिंग्स की थी। इसके बाद से अब तक कोई सहर हासिल मीटिंग नहीं हुई। और एक हम बात जरूर करना चाहते हैं कि स्टेट बैंक ने अभी तक इम्पोर्टर्स के लिए कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से ये सारा तूफान बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपकी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए कि क्या चीज़ हम इम्पोर्ट कर सकते हैं और क्या की जा सकती है और क्या नहीं, ताकि इम्पोर्टर्स में पाया जाने वाला इबाम दूर हो सके। और वो जब मंगवा लेते हैं और फिर 2-2 महीने डिटेंशन और डेब्रिज में उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। इम्पोर्ट सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाए, जैसा कि अर्जेंटाइन ने करप्शन की रोकथाम के लिए किया था। FPCCI समझता है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन से ही तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी का तयन इकॉनमी के दीगर पहलुओं से हटकर नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में फिजिकल साइड को भी हम आहंगी में लाना लाजमी है। बिजनेस कम्युनिटी ये भी समझती है कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ के मौसर ताल्लुकात से ही मुआशी मसाइल का हल निकल सकता है। गवर्नमेंट का डोमेस्टिक डेट खासी बड़ी मालियत रखता है। शरह सूद के इजाफे से न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को मुतासर होती है, बल्कि हुकूमत को डेट सर्विसिंग में इजाफे की वजह से भी खासा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हुकूमत मज़ीद टैक्सेस की तरफ जाती है। बहरहाल डबल इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ का नफाद हो जाता है। FPCCI सियासी मामला को माशी फैसलों से अलग रखने का हामी है और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर काम कर रहे हैं। और इसमें हमने तमाम जो अपने पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हम पहले इस्लामाबाद में 5 तारीख को मैंने मीटिंग की, फिर 7 तारीख को लाहौर में हमने मीटिंग की पंजाब के एसोसिएशन और चैम्बर्स का, फिर कराची में 10 तारीख को सिंध के और बलोचिस्तान के लोगों के साथ हमने मीटिंग की, ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह 28 फरवरी को इस्लामाबाद में हम एक अपना तकरीब कर रहे हैं, जिसमें उससे पहले हम तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ रब्ता करेंगे, उनको भी अपने साथ अमल करेंगे ताकि उनकी भी साइन हो जाए इसके ऊपर। और पाकिस्तान के लिए हम 15 साल का कोई एक प्लान दे दें ताकि चीज़ें चलती रहें। यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमारी जो पॉलिसीज़ में उनमें ना कंटिन्यूटी है, ना कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से कोई एक गवर्नमेंट आती है, वो एक पॉलिसी देती है और एग्जैक्टली 3-4 साल बाद वो जब जाती है तो वो दूसरी जो गवर्नमेंट आती है वो 180 डिग्री पे एक नई पॉलिसी देती है, जिसपे इसमें जो पहला बात हुई है वो जो तमाम इम्पोर्ट्स जिसमें डॉलर्स शामिल नहीं हैं, इनको फिल फोर क्लियर किया जाए ताकि बिजनेस कम्युनिटी का मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। अगर एक्सिस खोलने में इस तरह से देर की जाती रही तो खदशा है कि हम अपने इंटरनेशनल सप्लायर्स का एतमाद भी खो देंगे, जो कि बहुत मुश्किल से बनता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आलमी तजारत की साख भी को भी नुकसान पहुँचेगा और मुतासर होगी। ओपन अकाउंट को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, जो कि अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए अलाउ है, जिसके तहत वो खाम माल मंगवा सकते हैं सिर्फ अपनी प्रोडक्शन के लिए। आई फॉर्म की शिक को ख़त्म किया जाए ताकि कागरबाजी को तजारत में सहूलत मैसर हो सके। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ गोशगुजार की हैं, कुछ मैंने जानबूझ के काफ़ी काम किया जा रहा है। आगे बढ़ाते हुए वो सोच है हमें मेड इन पाकिस्तान सोच रखनी चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ दे। अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट है जो आमतौर पे ब्यूरोक्रेसी समझती है कि बड़े पैसे कमा रहे हैं या पैसे, लेकिन ये नहीं सोचती कि रोजगार कितने लोगों का है, कितने लोग उससे इफेक्ट होंगे। मैं आपको बेट करता हूँ जो पॉलिसी आपकी चल रही है, अगर ये 1 महीना आपने और चला दी तो एंड ऑफ मार्च या मिडल ऑफ मार्च में यहाँ फसाद हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं आएगी। रॉ मटेरियल एक 100 रुपये पाउंड
اس کا جو ایفیکٹ ہے تو پلیز پہلے آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, جو لوگ کی جو تھنکنگ میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے. وہ ابھی میں نے کسی سے بات کی کہ بھائی ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, دنیا میں بینکوں کی ریٹنگ بھی خراب ہو رہی ہے کہ یہ پے نہیں کر رہے, تو آپ اوپن اکاؤنٹ ان کو دے دو جب بھی پے کریں. انہوں نے کہا جی یہ تو حوالہ ہنڈی ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کا کیا میٹر ہے, آپ کا مسئلہ ہے. میرے کو 220 روپے یا 25 روپے آج چل رہا ہے, میں 250 میں 70 میں حوالہ کیوں کروں گا؟ اور کوئی کرے گا بھی تو کرنے دیں. آپ روک سکتے ہیں, اسمگلنگ روک لی آپ لوگوں نے. آپ پہلے دیکھیں پاکستان کیسے چلے گا. آپ بس لگیں گے کہ وہ کیا کہے گا یہ حوالہ ہنڈی. تو آپ دیکھیں یہ جو پالیسیز ہے نا, اس کی وجہ سے حوالہ ہنڈی ہوتی ہے. حوالہ ہنڈی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پالیسیز وہ ہوتی ہے, ٹیکسیشن کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی حوالہ ہنڈی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا, حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. آپ اس بات پہ بیٹھے ہیں کہ وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, فلانا کیا کہے گا. آپ کا کام ہے پیپرز دیکھنا. پیپرز میں آپ کو نارمل حالات میں اگر ہم کہتے ہیں 365 دن کا ڈی ہے, اوپن اکاؤنٹ ہے, تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. آج جب ہم مر رہے ہیں, بجائے اس کے ٹھیک ہونے کے آپ کہتے ہیں آپ کا حوالہ کر دیں گے. کیا سوچ ہے بھائی, کمال ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح یہ ملک اسی لیے کہ یہاں کی صحیح ریپرزنٹیشن کو آپ نے سننا نہیں ہے. اچھا, ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, اس سے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے پورا یورپ, اس سے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے پورا انڈیا کر رہا ہے, تائیوان کر رہا ہے. ہم لوگ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. اس مشکل میں جب آپ اپنے بلینز آف ڈالر بچا سکتے ہیں تو بھی کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کوئی کیش کا لین دین نہیں کریں, لیکن کوئی بارٹر سسٹم بیٹھے ہمارے ساتھ, منسٹری کو بٹھائے, بیٹھ کے اس کو حل کریں تاکہ یہ چیزیں دیکھیں. ڈالر تو آپ نے کہیں سے لے بھی لیے نا, 4 5 10 12, تو 2 4 6 مہینے میں آپ نے کھا لیتے ہیں کہ ہم نے کھا لیتے ہیں. اس کا ایک مستقل حل کریں جو جس سے ہماری معیشت پہ, ہمارے ڈالر پہ, ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر کم پڑے. اب جاب اگر آپ نے کوئی چیزیں سیٹل نہیں کی, سپلائی چین نہیں کھولی آپ نے, تو جابس جائیں گی, بے روزگاری کا ایک طوفان آئے گا. ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 1 مہینہ چلائیے نا اس طرح, آپ دیکھیے گا مہینے بعد کیا ہوتا ہے. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں دال 1000 روپے کلو ہوگی, یا کھانے پینے کی چیزیں لائک یہ بخاری صاحب کہاں بیٹھے, پیاز آئے ہوئے, ان کو روکا ہوا ہے. مطلب کوئی ایک تو پیریشیبل آئٹم ہے, دوسرے کھانے والی آئٹم ہے, عام آدمی کی آئٹم ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ بینک میں آتا ہے اور وہاں سے میسج آتا ہے کہ پیبل مینیبل, تو آپ اس کو الاؤ کریں اور سپلائی چین کو بحال کریں. باقی چیزیں ایک ایران کا جو سلسلہ ہے اس کا جو لاز میں رہ کے جیسے دنیا بارٹر کر رہی ہے, ہمارا بارٹر سسٹم کرے نا, تاکہ لوگ اس پہ جو ہے اپنا دماغ لگا کے اپنی چیزیں, یہاں سے آپ چاول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. 2 بلین کا آپ یہاں سے جو ہے کم از کم 2 بلین کا ٹیکسٹائل جا سکتا ہے. ان کا کیش جو ہے فری زون ہے. آپ مطلب جب تک ایکسپلور نہیں کریں گے چیزیں اس طرح. اور یہ پالیسی ریٹ تو اللہ کا نام ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اس پالیسی ریٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے مہنگائی سے کہ آپ اس کو مہنگائی روک لیں گے. یہ ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں جو کہ بالکل غلط ہے, اور یہ ثابت ہوا کہ جہاں بھی ریٹ کم تھا وہاں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. جہاں پالیسی ریٹ بڑھا ہے دنیا میں انفلیشن ہو گیا. تو اس کو پلیز آپ جو ہے کٹ ڈاؤن کریں. باقی باتیں اور لوگ جو کرنا چاہیں گے, میں اپنی بات مکمل کر چکا. اپنی منمانی کر رہے ہیں اور خاموشی کی وجہ سے اعلانات کچھ ہوتے ہیں جی ایسی کھل جائے گی, لیکن بینکوں کے پاس ہے تو گورنمنٹ کی پیسے کی ویلیو نہیں ہے, بینک کسی چیز کو آنر کرنے کو تیار نہیں. اور ایل سی کھل جائے 84-85 کی ایل سی کھول دیں گے. ایل سی جو فارماسیوٹیکل کی یا چند کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی ایل سی کھل جائے گی 2 جنوری کو, لیکن بینکوں کے پاس جائے تو کہتے ہیں جناب 15 جنوری کے بعد آئیے گا. ڈی اے کی بات ہوتی ہے تو جناب وہ کہتے ہیں کہ 180 دن کے ڈی اے کروا رہے ہیں, تو پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. 20% انٹرسٹ پہ آپ کی معیشت کیا چل سکتی ہے؟ جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی صرف بینکوں کے لیے کما رہی ہے, اور جو انڈسٹری خود ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. اب یہ جس طرح ڈیٹینشن چارجز کی بات کی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی, میں ڈار صاحب سے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ اگر
बैंक ने अगर ऐसी नहीं भी क्लियर करनी फॉर द टाइम भी, कम से कम वो गुड्स को बॉन्डों में तो फेंक दें, ताकि ये तो कंटेनर या खाली होकर वापस जाए और डिटेंशन चार्जेस से आपकी जान छूटे। कोई रेमेडी, कोई जायज बात करने को, किसी क्राइसिस को मीट करने के लिए सुनने को कोई बंदा तैयार नहीं है। तो मैं तो खुद समझता हूँ कि जिस तरीके से जो बैंकों ने भी इज्जत पहुंचा रखी है इस मुल्क में, और उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, उनके भी 4-4 तो 3-3 रेट्स हैं। तो मैं इसमें तो मुझे और कोई सॉफ्ट नजर नहीं आते कि मैं ये कहूँ कि हमारे इदारे जो हैं क्राइसिस को हैंडल करने के लिए टोटली फेल हो चुके हैं। खुदा के लिए कोई उम्मीद दें, कोई उम्मीद जगाएं, ताकि जो है ना इस मुल्क में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कुछ ना रमा दवा हो सके। कोई फार्मा सेक्टर इस सब को जोरदार, और लोगों के दिनों में ये बात आ रही है कि अगर एक इंसुलिन का कोई बंदा का शुगर का मरीज है और वो साहिब हैसियत है, उसको नजर आ रहा है अगले 2-3 महीने में मुझे ये दवाई नहीं मिलेगी, तो 3 महीने का स्टॉक वो तो लेके घर बैठ गया है, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या आपने उसको मरने के लिए छोड़ दी है? तो कुछ सोचे खुदा के लिए, इस मईशत के लिए, इस मुआशरे के लिए, इस सिस्टम के लिए कुछ सोचे। थैंक यू वेरी मच सर। और सर मुझे याद है मैं आई वाज वर्किंग विद प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत पुरानी बातें मैंने करती थी। उस जमाने में एक ऐसा दौर आया था और उस वक्त जो है एनआरआई पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी में बड़े मुश्किलात पैदा की कि कैसे पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं, क्यों पैसे हैं। तो एनआर तुर्की साहब होते थे उस वक्त की, उन्होंने कहा कहीं के भी पैसे हैं हमारे पास खाने को नहीं है, ये आने दो। और एनआरआई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी नॉन रिपेटेबल इन्वेस्टमेंट, जिसमें बिलियन डॉलर्स की मशीनरी आई थी और ड्यूटी पे करके हम उसे ले आए थे। इवन उस वक्त इतना हम ऑपरेट किया गया कि जो 40% मशीनरी पे ड्यूटी थी वो उन्होंने 30% कर दी, वो हवाले को भी उन्होंने अपने शहर में गिर लिया। तो आज अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो कम से कम उन लोगों को तो अलाउ करते हैं कि जो अपने मैनेज कर लें अपने डॉलर को और खुद ले आए। उसमें क्या इश्यू है आपके लिए? दूसरा प्रॉब्लम सर ये था कि जमाने में एसएनआर डिवीजन हुआ करता था। माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी ने आते आते वो सारे इदारे बंद करा दिए, जिसमें थोड़ा बहुत लगता था कि कुछ मिल जाए। वो होते थे कैपेसिटी कि किस कंपनी की कितनी कैपेसिटी है इम्पोर्ट की और कितनी रिक्वायरमेंट है। हम ये मानते हैं कि हमारे कुछ लोगों ने जखीरा की क्यूई और प्राइस में जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो उनकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। तो या तो आप उनका चेकअप कराएं कि किसके पास कितना रॉ मटेरियल है, या एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें कि जिस कंपनी की कितनी कैपेसिटी है इम्पोर्ट की। एक ये भी है, एक मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि आपने इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से नहीं कर दिया है। मैं समझता हूँ उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसे सदर साहब ने कहा कि बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप कर दें मेरा ख्याल है तो ये हम बैंकों ने जितना लूटा है, आप डॉलर को फ्री मार्केट में क्यों नहीं डाल देते? आई एश्योर यू कि जिस दिन आप फ्री मार्केट में डॉलर को डाल देंगे, ये डॉलर पहले थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद ये डॉलर कम हो जाएगा। लोगों के घरों में जो आप पे कॉन्फिडेंस न होने की वजह से डॉलर और गोल्ड जमा हो गया है, वो मार्केट में बाहर आएगा। के लिए इकोनॉमिकल पॉलिसीज जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है कि 2 और 2 4 कर दिए। ये इकोनॉमी को थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है और उसको प्रैक्टिकल में जो लिखा है थ्योरी में वो नहीं होता, प्रैक्टिकल अलग होता है। जैसे हमारे सदर ने कहा, हम में से कुछ लोग ले रहे हैं, हम आपसे तनख्वाहें नहीं लेंगे, लेकिन ये समझ लें कि इस मुल्क में और भी टैलेंट लोग हैं। तो खुदा ये देखें, मामला बहुत खराब हो चुके हैं, अनार्किज्म की तरफ मुल्क जा रहा है। खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कहता कि मुल्क जो है श्रीलंका होगा, लेकिन कम से कम एक दूसरे को मारने का दौर शुरू हो जाएगा। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल उसके रिफ्लेक्शन मांग रहा है हमसे। स्टेट बैंक गवर्नर और नेवर वाइट एंड ही एवरीथिंग विद पैशन। मैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें जो है उसके पर बात करना चाहता हूँ। और प्रेसिडेंट साहब की इजाज़त हुई तो हम वो मिनट्स को मैंने रिकॉर्ड किए थे जो प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव किए,
क्या बातें हुई थी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा गवर्नर साहब, आप तो बड़े लकी गवर्नर हैं। स्टेट बैंक को जो है वो सारे पार्टियों ने मिलकर इंडिपेंडेंट बनाया, और आई कैन फेयरली रिमेंबर कि उसमें GSQ भी शामिल थी। लेट अस बी वेरी क्लियर कि आपको तो GSQ की बैकअप है आपके इंडिपेंडेंस में। यू आर सो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कि पाकिस्तान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इतनी बैकअप नहीं जितनी आपको है। अब आप देखें आपके अपने एक्ट में जो है व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? यू हैव टू टेक केयर ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। और प्राइस स्टेबिलिटी के सामने आपके पास जो है, मैंने उस दिन भी आपको मिल्टन फ्रीडमैन का मकाला सुनाया था कि पॉलिटिशियन से या सेंट्रल बैंकों से यही कहा जाए कि किसी तरीके से आप इन्फ्लेशन को कम करें। पाकिस्तान में वी हैव आइडेंटिफाइड इन हमसे कंसल्टेशन विद इकोनॉमिक्स के पाकिस्तान में 39 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें से 11 फिस्कल रिलेटेड हैं। आप वहाँ पे कोई भारी हाथ रखें, यू आर इंडिपेंडेंट। आई वुड रियली ऑनेस्टली रिक्वेस्ट यू, प्लीज बी इंडिपेंडेंट। आप वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को समझाएं कि उनकी पॉलिसियाँ क्या है। हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल डिसीजन होती है कि इसको 400 अरब दे दें, उसको 1800 अरब दे दें, उसको 2000 अरब दे दें, किसी को 123 बिलियन देनी है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। ये सारा मिलजुल कर बोझ जो है इसका आप बोझ का इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप उस इल्ज़ाम से काफ़ी हद तक बरी जिम्मा हैं, मगर आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ काम दिखा सकती है। और एक चीज़ और मैं सबको बताऊँ और ऑडियंस, वहाँ पर जो भी डिस्कशन हुई उसमें कैसर शेख वाज चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। लेट मी शेयर यू, उन्होंने गवर्नर साहब के सामने ये कहा कि मामला करता है कि हमें क्यों ब्लॉक में हल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लॉ इकोनॉमिक्स जो है इट इज डीपली पेनिट्रेटेड एवरीवेयर। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर शहबाज शरीफ के बजाय अगर डार को आप प्राइम मिनिस्टर कहें तो गलत नहीं होगा। तो मेरे अपने ख्याल में कि अगर एक फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी वाले ये कहते हैं कि स्टेट बैंक वुड हैव टू डिपेंड ऑन द क्यू ब्लॉक, तो जरूर इसको भी जरूर आप टेस्ट करें। हो सकता है क्यू ब्लॉक से आपके मसले हल हो। अब एक और मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी भी इदारे में या बोर्ड्स बनते हैं, ये बात 20 साल पुरानी है, शौकत अली भी हमें कहकर गया और फाइनेंस मिनिस्टर कि तमाम बोर्डों में जो है हम आपके रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे। दिस इज द अपेक्स बॉडी, वी रिप्रेजेंट 251 ट्रेड बॉडीज इंक्लूडिंग ऑल चैम्बर्स, ऑल एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, all associations of industry and all association of services। मगर आई एम सॉरी टू से दैट कि मुझे बहुत ही एहतियात से बात करनी चाहिए। मेरे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा कि कहीं पे अगर कोई चीज़ जो है आप मुनासिब समझते हैं तो ज़रूर बात करें। आपका बोर्ड इज अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स। मुफ्ता इस्माइल ने अपने दो दोस्तों को डाला, वी नो, एवरीबडी नोज। यहाँ पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे, वो पूरा बायोडेटा बताते हैं कि ये किसका दोस्त है, वो किसका दोस्त है। अगर आप लोगों ने फ्रेंड का क्लब ही बनाना है स्टेट बैंक में, तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कौन बात सुनेगा। अब एमपीएस के लिए मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने अपने तकरीर में तस्करा किया कि 7 आदमी को आप ले लेते हैं जिनको आप पहचानते हैं। हमें आकर किसी को पहचानने की क्या जरूरत नहीं है क्या? वी आर रनिंग द इकोनॉमी। मैं बड़ा एक मॉडर्न तरीके से एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यू ऑल पीपल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अवर एफर्ट्स, वी आर नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। इफ वी डाई और कमेटी बनाने के बाद आप लोगों ने उसके बाद एक फॉर्मल मीटिंग की, उसमें भी टीओआर तय किए और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि टीओआर के लिए भी मजीद हम आज तक उसमें कोई प्रोग्रेस कर सकें। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इतनी बड़ी रैपिड बॉडी को आप लोग कोई लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। और जनरल आपके पास हम फोन करते हैं तो कभी कभी अगर आपके ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिशियल्स फोन उठा लेते हैं तो उसकी मेहरबानी होती है, नहीं उठाए तो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। जब हमारे भी फोन नहीं उठाए जाएंगे और यहाँ पूरी ट्रेड के नहीं उठाए जाएंगे तो ये बड़ी ही बड़ी बात है। यहाँ गुजारिश हमारी ये है कि सर कि यहाँ पे तमाम लोग जो इस चीज़ से वो हैं, आप लोग अगर मुशावरत में शामिल करेंगे तो हम लोग वो चीज़ें जो कि आप लोग सिर्फ फिस्कल साइड पे इम्पोर्टेंस देते हैं, ट्रेड साइड और उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं देखते हैं कि जो इकोनॉमिक साइड, ट्रेड साइड, इंडस्ट्री साइड या उसके साथ क्या बेरोजगारी का इम्पैक्ट पड़ रहा है,
तो वो भी हम आपको हाईलाइट कर सकेंगे और पॉलिसीज बनाने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट कुछ दो गुजारिशात थी। एक तो इस वक्त सर आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से शायद आपको ज़्यादा होगा कुछ ऐसे के बाद कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है या आ चुका है कि मार्केट में एज सच शॉर्टेज ऑफ गुड्स नहीं है, प्राइसेस इंक्रीज है। अब वो जो हम 15 बिलियन 20 बिलियन की मार्केट को यहाँ से श्रिंक करना चाहते हैं, वो ऑल्टरनेटली शिफ्ट होके अफगानिस्तान के लोगों को दे रहे हैं और पाकिस्तान से बिजनेस खत्म कर रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आ रही कि जब पाकिस्तान का 15-20 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक रेवेन्यू के अलावा रेवेन्यू एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसके सारा रोजगार उठा के वहाँ देना चाह रहे हैं। इसके लिए कुछ सोल्यूशन पॉलिसीज के साथ डिस्कशन अगेन होने की जरूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में नहीं आएगा, यहाँ माल आ रहा है, सिर्फ बैंक एफआईज यहाँ पे नहीं देंगे, पाकिस्तान में माल मौजूद है, महंगा आ जाएगा तो दूसरे तीसरे रास्तों से आ जाएगा। तो इसको जरा कंसिडर करने की जरूरत है। और इम्पोर्टेंटली एक बात की गई कि इंटरेस्ट रेट को जैसे लिंक किया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर तो 15% के करीब की बात करता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पब्लिक सेक्टर में सरकारी गवर्नमेंट लोन्स हैं जो कि इसके अंदर इम्पैक्ट करते हैं। 1% बढ़ाते हैं तो हमारे जितना रेवेन्यू की हमें शॉर्टेज आती है, उतना तो उसके ऊपर लोन का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना, फिर इवेंचुअली आवामी नाज को गवर्नमेंट से बोरिंग से तकलीफ होती है। तो इस चीज़ को अगर उसके साथ लिंक करते हैं तो ये फायदे की बजाय नुकसान है। लास्टली सर, क्योंकि जल्दी जल्दी बात करनी है, 380 मिलियन रुपए हम लोग बाहर रिमिट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, और हमें ये साल में करीब 4.5-5 बिलियन के करीब का अमाउंट बन जाता है। हमारे देखिए शिपिंग के पैसे जरूर जाने चाहिए। अब आप और हम मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि जिसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है ये 380 मिलियन डॉलर का बाहर जाने की बजाय उसमें जो कंटेनर रेंट और डैमेजेस की मार्केट है, क्योंकि सब फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैं, तो चाहे शिपिंग कंपनीज हो चाहे वो, उनको कम से कम वो कारोबार करने के लिए आई हैं और वो अपने पैसे को ले जाएंगे। लेकिन इसको हम लोग अगर रोक सकें तो मेरा ख्याल है कि अमाउंट कम से कम आधा हो जाएगा। तो ये आधे पैसे जो पाकिस्तान के 2 बिलियन 1.5 बिलियन 2.5 बिलियन के करीब हम बचा सकते हैं, तो मेहरबानी करके इसको बचाने पे आप ताउन कीजिए, ना कि लोगों के माल रोक के एक $5,000 पर कंटेनर पर मंथ, इसलिए कि आप उसके ऊपर 100% मार्जिन डाल देते हैं। कभी आप उसको बैड आइटम में डाल देते हैं। इंडस्ट्री आइटम को 7 साल से मेरी इंडस्ट्री को अब इंडस्ट्री में सेक्टर्स में ऑडिट करते हैं और उसके ऊपर उसको बैड में डाल देते हैं। 2 महीने में डैमेज खा के आप लोगों की रिक्वेस्ट करके उसको बैंड से हटा के ले आता हूं और फिर आप दोबारा उसको 100% मार्जिन पे ले आते हैं। असद उमर साहब से बात हुई, ये गलती से हो गया। रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई कि हाँ यार ये बहुत बड़ी गलती है, शाम को सही कर दूंगा। आखिर में रज़ा बाकर साहब से मैंने बात की और उन्हें 1 हफ्ते में वो मार्जिन 100% आया, तो वो रिलैक्स होकर चलने लगी। आज फिर कोई गलती है, इतनी सी फर्क है उसमें कि 48.3 जो है वो रॉ मटेरियल के लिए है और 48.18 जो है वो फिनिश गुड्स के लिए, जिसमें डब्बे भरते हैं। और ये मेरी एक इंडस्ट्री नहीं है, ये 12 इंडस्ट्रियां हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को हटा दिए। मेरे बेटे हैं, बाहर पढ़ते हैं, सब हैं। हम बाहर चले जाए या इंडस्ट्री बंद कर दें। अगर आप कहते हैं इंडस्ट्री बंद कर दें तो मेरी रिक्वेस्ट है बाय लॉ कि जो मैंने ड्यूटी और टैक्सेस आपको दिए हैं मशीनरी मंगाते हुए वो मुझे वापस दे दें, हम चले जाते हैं यहाँ से। और अगर आपने मशीनरी पे लिया है इंडस्ट्री का टैक्स तो मेहरबानी करके हमारी इंडस्ट्री को काम करने दें। हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग है, हमारी एलसी भी 100% साइट पे है और हम वैल्यू एडिड 60% दे रहे हैं सर। 60% वैल्यू एडिड बहुत कम इंडस्ट्री आपको देती है, हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। दूसरा ये है कि बैंकिंग के लिहाज से मैं छोटी सी बात करूंगा, सबका प्रॉब्लम है। 2 किस्म की आईपान का जो इशू है, तुर्की बैनर पर रिलैक्सेशन है और जम्मू बैनर पर रिलैक्सेशन है और हमारी ट्रेडर्स जो स्मॉल ट्रेडर्स है शिंजान अंदर चाइना के बॉर्डर से जो रिलेटेड है, हमें आईपान हमने कस्टम के चीफ कलेक्टर से भी बात
किया और हमने चेयरमैन साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये इशू स्टेट बैंक का है। तो ये तमाम जगहों पर आपने रिलैक्सेशन दी, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्टली आई फार्म के ऊपर काम नहीं कर सकती। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गिलगित बल्तिस्तान में तमाम ट्रेडर्स, वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई तो वो डॉलर से लिंक हो जाएगा, उस वक्त के डॉलर से वो कैश हो जाएगा। तो इस वक्त जो लोगों ने होल्डिंग करी हुई डॉलर की वो हो जाएगी, कंफर्म हो जाएंगे, उनको उसी वक्त डॉलर भी मिलेगा और जो छोटा मोटा उनको जो है प्रॉफिट भी मिल रहा होगा वो भी आ जाएगा। तो जो होल्डिंग है वो मार्केट में आएगी, तो जो प्रेशर है डॉलर पे वो काफी हद तक कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Now request Mr. हमारे पास पाकिस्तान में $2 है, क्योंकि यहाँ से टैक्स हेवन का सिस्टम ऐसा है कि आप लोग डॉलर और सोना जमा करते हैं। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि बैंकों के खिलाफ एक्शन अगर नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा स्टेट बैंक की तरफ से, क्योंकि इन्होंने ये भगदड़ मचाई है। लोग सुकून में बैठे हुए थे, एक्सपोर्टर का डॉलर आया, इन्होंने 10-10 रुपये 15-15 रुपये इन्होंने इसके अंदर जो है ना मार्कअप किया। एक दुनिया में कहीं 15-10 रुपये का कोई सिस्टम नहीं है। एक तो स्टेट बैंक कम से कम उनका मार्जिन तो कर दे, ताकि आइंदा जो कोई ऐसी सूरत हाल में वो अनड्यू एडवांटेज ना ले सके, नंबर 1। नंबर 2, जितना उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है वो आप जो है उस पर पेनल्टी लगाएं, और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम अगर कोई है तो हमारा भी एक बंदा शामिल करें, ताकि हमारे को ये पता चले कि साफ शफाफ जो है ना इन्वेस्टिगेशन हुई है। और आखिर में स्टेट बैंक को बजाय बाहर देखने के पाकिस्तान में जो डॉलर पड़े हैं उसको किस तरह सामने लाना है और किस तरह जो है वो पैसे निकलवाने हैं, वो पॉलिसी कोई लाए। हम तैयार हैं और हम ये गारंटी करते हैं कि 5 से 10 अरब डॉलर जो है वो आ जाएंगे। अकाउंट खोलने की इजाज़त दी जाए सर्टन कंडीशन, और इस पर हम बैठ के बात कर सकते हैं। थैंक यू जी। वफा की है उम्मीद, हमको इनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। I am here till 25th, then I will go back to the Dubai. अगर आप में से I will share my visiting card, and before that, because I believe in one thing, opportunities कोई किसी के हाथ में नहीं देता. We are all in investment thing or the business community, हमें opportunities create करनी पड़ती है. And I own my country, I own my people. If I am outside, but I will work for my country as well. Okay, thank you. Thank you so much, Irfan साहब, thank you so much. मैं प्ले बना दें, वहाँ पे आपका बंदा हमारे साथ आ जाए, ताकि लोगों के मसाइल फौरी तौर पर सुने जाएँ और एड्रेस हो जाए। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम आपको एक ऑफिस दे देंगे, कमरा दे देंगे यहाँ पे हो जाए, ताकि लोग यहाँ से आसानी के साथ हमारे साथ उनका रब्ता है तो आसानी के साथ लोग आ सकेंगे। जी दूसरी बात, एक मिनट करता हूँ। दूसरी बात अभी जो ना मुझे अभी इतला मिली है अभी 1 मिनट पहले के शुगर के नोटिफिकेशन निकाल दिया है हमारे क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, तो उसके लिए अब फौरी तौर पे स्टेट बैंक जो ना उन्होंने भेज भी दी है, तो मेहरबानी करके उसके ऊपर अभी करवा दें ताकि एक्सपोर्ट हो जाए। पैसे जो है हमारे पास हमें ज़रूर मतलब की ज़रूरत है फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँच जाए। ये नोटिफिकेशन मैंने दे दिया, मैंने भिजवा दिया मैंने, तो ये आप प्लीज़ उसको भी देख लें ताकि चीज़ें हो जाए। फिर सर तीसरी एक और रिक्वेस्ट है कि आपने क्या कमेटी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में हमने 4 पदों की कमेटी बनाई हुई है, वही कमेटी आपके साथ करेगी और मैं आपके नाम को दोबारा विचार जी मैं आपको लेता हूँ, मैं लेता हूँ आपका पता भी ले लूँगा। उसके बाद आगे जनाब आपका एक हमारी एक रिक्वेस्ट और भी है कि आइटम वाइज एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए, जो कि ये आप इसको कर सकते हैं, इंपोर्ट इसको कर सकते हैं और इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं ताकि लोगों को जाएं उसमें वेब में जाकर चेक करें कि क्या क्या चीज़ किस लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज उसकी हो सकती है इंपोर्ट। क्योंकि हमने जाना है उसमें कि हम 50 बिलियन की कर सकते हैं या 60 बिलियन के वट एवर जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट के मुताबिक आप आइटम वाइज जो है ना उसकी एक लिस्ट बना दें कि ये इतना माल इसमें इतनी इंपोर्ट होनी है, आपके पास सारे फिगर्स हैं। तो मैं कहता हूँ उसमें ये आसानी हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या चीज़ मंगवा सकते हैं और किस चीज़ को हम आगे लेके चल सकते हैं और कितनी आ सकती है।
तो ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी। और सर दूसरी बात जो मेन हमारी है कि जो कंटेनर फंसे हुए हैं उसके बारे में आपने अभी तक उसको क्लियर कर नहीं बताया कि इसको कहाँ लेके जाना है आपने, ये कब क्लियर करने हैं और किस तरह से इसका होगा। नहीं, इस पे तो मैंने बिल्कुल सॉरी, इस पे तो मैंने बहुत क्लियरली कहा। इसी ये जो कमेटी है, एक तो ये उसको ज़रा थोड़ा सा हमारे साथ आज ही मिल के तो इसके ऊपर हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है, और वो फॉर्मेट हम आपको दे देते हैं। आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके वो दे दें 1-2 दिन के अंदर, और उसके ऊपर हम बिल्कुल उसको लेके चलते हैं उसको, और उसमें रेस्ट अश्योर्ड के इसको बहुत जल्द हम क्लियर करवाएंगे आपको। बिल्कुल ये इमीडिएट प्रॉब्लम है और इसको हमें एड्रेस करना है। तो आप बिल्कुल सिर्फ हमें सिर्फ हमें ने जो इस वक्त हमारे पास देखे ना अभी के इम्पैक्ट कितना आएगा, आउटफ्लो होना है ना उसका। तो हमें कोई ऐसी आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहते कि जो कि हमें पता चले कि हमारे लिए इस वक्त वो प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी मुनासिब जो चीज़ होगी या उसको हम ग्रेजुअली करेंगे कुछ चीज़ें, तो पहले हम उसको असेस कर लें कि टोटल आउटफ्लो इन्वॉल्व कितना है। उसमें आउटफ्लो उन वालों को तो आप कम से कम क्लैरिटी दे दें कि जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होना सर। हाँ, नहीं वो ऑलरेडी 60 डेज 90 डेज 120 डेज 365 डेज तक क्योंकि मौजूद है सर, उसमें तो कोई आउटफ्लो का सवाल बिल्कुल। नहीं है सर। देखिए, अगर आप इसमें जो हम आपको फॉर्मेट दें, इसके अंदर आप बिल्कुल ये भी हमें मेंशन कर दें कि इसको कोई आउटफ्लो नहीं है इन्वॉल्व। तो जिन केसेस के अंदर कोई आउटफ्लो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, हम उसको सेपरेट डील कर लेंगे। आप थोड़ा इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मियां अंजुम साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इसको? ये मेरा कार्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इशू है काफ़ी से लगे स्टेट बैंक से ट्रेड मियां अंजुम साहब ट्रांजिट ट्रेड वो एक सेपरेट है, पर वो अच्छा चल मैं अभी लाहौर ऑफिस से तो सुन रहे हैं। मियां अंजुम साहब को बात करना चाहते हैं तो बताएं। शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट साहब, आवाज़ में यकीनन आ रही होगी। सर मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, इकोनॉमी में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, मार्कअप ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है मार्कअप भी नहीं क्लियर कर पा रहे। तो कम अज़ कम ये जो इंडस्ट्री की बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए ये जो लोग धड़ाधड़ वर्कर्स को निकाल रहे हैं, इस क्योस को रोकने के लिए जिस तरह कोविड के दिनों में सॉफ्ट लोन दिए गए थे, सिमिलर लोन के लिए कोई ना कोई सीरियसली सोचे। और जिस तरह आपने दूसरा हेल्प डेस्क की बात की है कराची में, तो पंजाब बहुत बड़ा एरिया है, पंजाब में भी ये हेल्प डेस्क यहाँ भी पैरल बनना चाहिए ताकि यहाँ के जो मसले हों डायरेक्टली जो है स्टेट बैंक अपना सेंट्रल बैंक के कराची ऑफिस तक पहुँच सके। यहाँ भी बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में हैं और एजुकेशन जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है, बहुत सारी इदारे जो है वो सड़कों में आने के लिए तैयार है और हमें भी खोज रहे हैं और यकीनन स्टेट बैंक वालों को भी खोज रहे हैं और गवर्नमेंट को भी खोज रहे हैं। तो मेरे साथ मैं सेपरेट अगले हफ्ते में रख रहा हूँ ऑलरेडी, तो इनको रीजनल लाहौर बेस पर भी एक हेल्प डेस्क करना चाहिए ताकि जो और मॉनिटरिंग की मैंने अर्ज की थी कि ये इस वक्त इंडस्ट्री इस पोजीशन में नहीं है कि स्टेट में आपको जो है वो जो बैंकों के लोन फौरी तौर पर अदा कर सके। तो इसमें भी कोई सॉफ्ट कोई तरीके कार ढूंढे ताकि जो इंडस्ट्री जो है उसको मॉनिटरिंग मिल जाए, आपको अपना मार्कअप देते रहें, लेकिन मॉनिटरिंग उनको मिल जाए ताकि सिस्टम को जो है क्राइसिस को वो भी इजीली बीट कर सके। थैंक यू सर। गवर्नर साहब आपने 365 डेज की बात की, बड़ी खुशाइंदा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर एग्री कर रहा है, पाकिस्तान से बैंक्स जो है वो टेलेक्स या कोई कम्युनिकेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आप जो बैंक्स के साइड का इशू है हम इसको टैकल करेंगे। आप 36 आपको सिर्फ आपने अपने एंड पे ये काम करना है कि 365 डेज़ के ऊपर आपके जो केसेस हैं आप हमें रेफ़र कर दें, बस ठीक है ना। बस फिर अगर वो फिर उसको रिजॉल्व करवाना हमारी जिम्मेदारी। मीडिया जो ना मीडिया के बात से बात नहीं करता, लेकिन मीडिया को गवर्नर साहब ने कहा कि मैं इनको इसके ऊपर देखिए आप देखिए मीडिया आप सोचिए देखिए 23rd को हमने आपके साथ एक मीटिंग एक्सक्लूसिव रखी है, उसमें और कोई भी नहीं होगा। आप तो
अच्छा चलें बताएं आप। और ये इसी हवाले से बैंक के हवाले से कि ये कोई साथ ये भी बता दीजिए कि जो पैरोगे कोर्ट पे जो कर ठीक है जी, तो जी जी ये बिल्कुल आपके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई है और उसको अपडेट मैं आपको दूंगा। मैं इस बिल्कुल इस क्वेश्चन से भागने वाला नहीं हूँ, फिक्र नहीं करें आप बिल्कुल, लेकिन वो सेपरेट से बात करेंगे। आज ज़रा देखिए आज सिर्फ नहीं आप खबर ये चलाएं ना कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और अब हम उसके ऊपर एक्शन जो है वो लेने जा रहे हैं, ठीक है। बट ये आपको अपडेट मैं फर्दर जो है इसके ऊपर दे दूंगा। इस वक्त चूंकि आज सारा फोकस जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम से है, तो उसी के ऊपर हम आज फोकस रखेंगे। जी देखें, एक तो मैं इसीलिए थोड़ा सा देखें कुछ चीज़ें जो है वो जायज़ के मैं इधर अभी आपको जवाब दूं, इसीलिए मैंने ये कमेटी बनवाई ना। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो आप भी शामिल हो जाएं और इसको बैठ के हम पूरा जो है उसके ऊपर आपको प्रोसेस दे देंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। देखिए पॉलिसी जो बनेगी वो सबके लिए देखिए आराम से, अरे हमारे भी माल पड़े हुए हमारे भी पड़े हैं, आप अकेले देखिए शोर में जाने देखिए शोर देखिए हम भी मर चुके हैं, हमारा बैंक का पैसा नहीं है। बंद करो देखिए जब तक आप पता जनाब जमील अहमद साहब गवर्नर स्टेट बैंक आज की इस मीटिंग में जो अपने शोबे की सबसे बड़ी ईमानदार है एनपीसीआई जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का वाहिद इदारा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे लिए लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है, इंतहाई नतीजे के साबित हुई। आज की इस मीटिंग में जो मसलात बिजनेस कम्युनिटी ने जाहिर किए